Hello students. Today we learn about lesson number 5, e-communication. You all have so many information regarding e-communication. Its help to make easy our life. With its help we can perform our daily task faster and better. Modern methods of information and technology of communication are known as e-communication. Tools of e-communication are laptop, mobile, television, computer, etc. For e-communication, internet facility is required. Now, what is e-commerce? E-commerce is the buying and selling of goods or services via the internet and the transfer of money and data to complete the sale. It also known as e-commerce. ई-कॉमर्स में क्या होता है, तो हम कुछ भी परचेस या सेल करते हैं वाया किसकी हेल्प से, इंटरनेट की हेल्प से, और जो मनी है वो भी ट्रांसफ़र इंटरनेट की हेल्प से ही करते हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, ई कॉमर्स. नाउ वी परचेज मोस्टली अवर नेसेसरी थिंग्स विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग. इट्स अ एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स. फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सबसे हम जब परचेस करते हैं कुछ भी चीज़, तो वो एक ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है. वी सिलेक्ट द प्रोडक्ट, ऑर्डर द प्रोडक्ट एंड ऑल्सो पे द अमाउंट वाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया. अगर हम कोई बिजनेस रन कर रहे हैं, तो उसे रन करने के लिए और कंपटीशन में टके रहने के लिए हमें कंपलसरी ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी को ही फॉलो करना पड़ेगा. मतलब कि हमारे बिजनेस को हमें ई कॉमर्स के साथ कनेक्ट करके रखना ही पड़ेगा. Now we show the meaning of e-commerce. And communication carried out through the use of electronic media and devices is called e-communication. The letter E used in e-communication suggests electronic. In e-communication, information is exchanged through email, video, and teleconferencing, television, network, or online services with the help of gadgets like computer, laptop, mobile phone using the internet. ई कम्युनिकेशन हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं, तो इंटरनेट की, और जो गैजेट्स है वो है कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन एक्सेट्रा. Scope and influence of e-communication has increased on internal as well as external communication of commercial firms or large business firms, government offices, corporations, financial, education and voluntary institutions have started adopting e-communication. जो कॉरपोरेट वर्ल्ड है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, वो अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए ई कम्युनिकेशन की हेल्प से उसमें क्रिएटिविटीज़ लाते रहते हैं. थ्रू द ई कम्युनिकेशन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ बिकम स्पीडी, वाइड स्प्रेड एंड लेस एक्सपेंसिव. जो ई कम्युनिकेशन की प्रोसेस है वो बहुत ही लेस एक्सपेंसिव है, उसमें ज़्यादा खर्चा होता नहीं है, and has reached the global level. Now we learn forms of e-communication. There are many forms of e-communication. Each form has its own method of functioning. Expenses, instruments, gadgets, patterns and limitation. हर ही कम्युनिकेशन की अपनी लिमिटेशन है, उस उसकी अपने अलग अलग गैजेट्स है, और फंक्शनिंग भी अलग अलग है. Any person or any firm associated with the business activity should use one or more than one type of e-communication, considering one business and services. Six main forms of e-communication that are widely used are as under: email, instant messages, website, video, audio, text messages. Let's us study email in detail. आप लोग ईमेल के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे और आपके पास अपनी खुद की ईमेल आईडी भी होगी. उसको कैसे क्रिएट करते हैं वो भी आपको आता ही होगा, लेकिन अभी हमारी बुक में, सिलेबस में ये कोर्स हमें समझना है कि ईमेल आईडी कैसे क्रिएट करते हैं और ईमेल का फुल फॉर्म क्या है. Email is one of the main forms of e-communication.
Today, email is used as an important medium of correspondence. Generally, written correspondence is used to exchange messages and information. Similarly, messages and information can also be exchanged through email. Correspondence carried out through electronic media is known email. Electronic mail is known as email. ईमेल का फुल फॉर्म क्या है तो इलेक्ट्रॉनिक मेल. ईमेल इज अ मॉडर्न मीडियम ऑफ करस्पॉन्डेंस. ईमेल इज यूज्ड for social, political, commercial and personal as well as institutional information. ईमेल का यूज़ कौन कौन करता है तो जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है या फिर कोई भी ऑफिसेज या हम खुद पर्सनली भी या कोई भी इंस्टीट्यूशन के लोग ईमेल का यूज़ कर सकते हैं. ईमेल इज रिटन मोर tactfully than convenient traditional letter. Forms of email. Both the sender and the receiver should have email address. जिसे हम मेल कर रहे हैं मतलब कि वो रिसीवर हुआ उसके पास भी अपना ईमेल आईडी होना चाहिए और जो ईमेल भेज रहा है उसके पास भी अपना ईमेल आईडी होना चाहिए. One should create an account through selection of suitable address by visiting sites that offer email services. Google, Yahoo ये सब में से हम अपना ईमेल आईडी क्रिएट कर सकते हैं. To operate an email account as user has to create a password. ईमेल आईडी बनाने के बाद हमें उसमें अपना पासवर्ड भी क्रिएट करना होता है. Using a coded language. इंटरनेट फैसिलिटी फॉर बोथ द पार्टीज. अगर हम किसी को मेल कर रहे हैं तो हमारे पास भी इंटरनेट होना चाहिए और जो रिसीवर है उसके पास भी इंटरनेट फैसिलिटी होनी चाहिए. द सेंडर एंड द रिसीवर ऑफ ईमेल इज नेसेसरी फॉर यूजिंग ईमेल. दोनों के पास अपना आईडी भी होना चाहिए और इंटरनेट भी होना चाहिए. Email can be sent and received from one computer to another, from computer to mobile phone, from mobile phone to computer. अगर हम फ़ोन से मेल करते हैं और किसी के पास कंप्यूटर है तो भी वो मेल रिसीव कर सकता है. अगर हमारे पास कंप्यूटर है और सामने वाले के पास फ़ोन है तो भी वो मेल रिसीव कर सकता है. विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. सबके लिए पहले तो हमें क्या चाहिए कि इंटरनेट फैसिलिटी. Points to be considered while writing email. First, email address is mentioned instead of address of the sender and the receiver of the letter. सबसे पहले हमें हमारा मेल आईडी और जिसको हमें सेंड करना है मतलब कि रिसीवर का मेल आईडी लिखना होता है. If the receiver of the email are more than one, then their email address are written under CC. All receiver will know about one another. अगर एक से ज़्यादा रिसीवर है तो उसका मेल आईडी भी हम लिख सकते हैं किधर तो सीसी जहाँ लिखा होता है उसके अंदर हम एक से ज़्यादा लोगों की मेल आईडी डालकर एक साथ बहुत सारे जन को एक ही मैसेज फॉरवर्ड कर सकते हैं. इफ़ द सेंडर डज नॉट वांट टू लेट अदर नो टू whom दिस मेल इज़ बीइंग सेंड देन देयर एड्रेस आर रिटन अंडर BCC. अगर हमें अपना मेल एड्रेस किसी को नहीं दिखाना कि हम कौन से मेल आईडी से मेल कर रहे हैं तो हमें अपना मेल आईडी कहाँ लिखना है BCC में. डेट एंड ईयर आर नॉट मेंशन सेपरेटली इन ईमेल. वहाँ हमें डेट और ईयर लिखने की ज़रूरत होती नहीं है क्योंकि वो डायरेक्ट ही जनरेट हो जाती है. सब्जेक्ट मस्ट बी रिटन इन ईमेल. हम कौन किस सब्जेक्ट पर मेल कर रहे हैं वो लिखना नेसेसरी होता है. सैल्यूटेशन इज नेसेसरी. सैल्यूटेशन मीन्स डियर सर ये जो सब हम लिखते हैं वो सैल्यूटेशन बोलते हैं उसे और वो कंपलसरी होता है. द मैटर ऑफ ईमेल शुड बी वेरी ब्रीफ एंड क्लियर. At the end of email, the sender should mention his her name and the name and contact details of the company. जब हम मेल लिखते हैं तब लास्ट में हमारा नेम कॉन्टैक्ट नंबर और जो कंपनी की डिटेल्स है वो भी लिखते हैं. इफ़ द कॉन्टैक्ट डिटेल्स आर प्रीपेड इन एडवांस एज अ पार्ट ऑफ सिग्नेचर देन दे विल बी इंक्लूडेड ऑटोमेटिकली इन एवरी मेल. उसमें एक ऐसी सिस्टम होती है कि जो हम पहले से ही अगर अपनी साइन कॉन्टैक्ट नंबर ये सब कुछ लिख के रख उसमें सेव रखते हैं तो वो हमको हर मेल के बाद लिखना नहीं पड़ता ऑटोमेटिकली वो वहाँ पे आ जाता है.
अटैचमेंट इफ़ एनी शुड बी इंक्लूडेड इन ईमेल। अगर हमें कोई पिक्चर, ऑडियो, वीडियो कुछ भी उसमें अटैच करना है तो हम उससे अटैच भी कर सकते हैं। रीड द मैटर रिटन इन ईमेल बिफोर सेंडिंग इट। हम किसी को मेल कर रहे हैं तो सेंड करने से पहले हमें केयरफुली उसे रीड कर लेना चाहिए। नाउ वी शो एग्जाम्पल ऑफ ईमेल। Write an email on behalf of Alpha Cycle Bharuch to Healthy Cycle Manufacturing Noida, placing an order to purchase 300 cycles। ये मेल हम किसको लिख रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को। क्या ऑर्डर है हमारा? साइकिल का। टू healthycycles@gmail.com फ्रॉम alphacycles@yahoo.com। सब्जेक्ट क्या है? तो ऑर्डर टू परचेज साइकिल। और जो सर, our customer are highly impressed with the quality and modern design of your cycle. The sale of healthy cycle is quite high in our area। जिसे हम ऑर्डर दे रहे हैं उसे हम बता रहे हैं कि हमारे एरिया में आपकी जो साइकिल है उसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। As the new academic year begins from June, the inquiry and demand for cycle is on the rise। जब भी एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है तब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो साइकिल परचेज करते हैं, इसलिए अभी ये टाइम में इसकी डिमांड है। तो वो और जो भी उसका ऑर्डर है और कॉस्टिंग है वो भी इसमें इस शो की हुई है। और लास्ट में जिसने ये लेटर लिखा है, मीन्स मतलब कि जो सेंडर है, उसने अपनी ओनर की डिटेल, अल्फा साइकिल्स, पूरा एड्रेस और मोबाइल नंबर भी शो किया है। ये क्या है? एग्जाम्पल ऑफ ईमेल। हमें कैसे ईमेल लिखना चाहिए उसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। Various types of e-communication. As per the syllabus of Standard 12, we are going to study various type of e-communication such as e-commerce, e-banking, e-learning and video conferencing, e-tendering, e-auction, e-filing, e-booking, e-stamping and e-governance। आपने ये सब के बारे में बहुत अच्छे से सुना होगा और कहीं पढ़ा भी होगा। First is e-commerce. When a product is sold or purchased without any restriction of time and place। जब हम कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन परचेज करते हैं तब हमें कोई टाइम की देखने की ज़रूरत नहीं होती कि चलो रात के 12 बज गए हैं तो शॉप बंद हो गई होगी, ऐसा कुछ होता नहीं है। हम कोई भी टाइम पे अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। With the use of electronic media through internet, it is called e-commerce। मतलब कि e-commerce में क्या बेनिफिट है? हमको जिस टाइम पे जो प्रोडक्ट परचेज करनी है या सेल करनी है वो हम कर सकते हैं। E-commerce is also called online shopping। Business units display the products manufactured by them, service offered on website or advertise them। ई कॉमर्स में हम ऑनलाइन अपनी एडवर्टाइज भी दे सकते हैं और जो कस्टमर्स होते हैं उन्हें किस किस टाइप की सर्विस प्रोवाइड करेगी वो भी डायरेक्टली हम बता सकते हैं। हमें होम टू होम जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। Them on television anchoring views to place online orders. Products are sold or purchased either by visiting the website or through a mobile phone। अगर हम डायरेक्ट वेबसाइट पे जाके परचेज करना चाहते हैं तो वहाँ से भी कर सकते हैं और मोबाइल फ़ोन में भी वेरियस ऐप्स अवेलेबल होती है जहाँ से भी हम ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। टेलीफोन एंड एसएमएस ऑप्शन आर अवेलेबल to make payments either by debit card, credit card, online banking और कैश ऑन डिलीवरी। जब हम ऑनलाइन कुछ भी परचेज करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं पेमेंट के लिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग और कैश ऑन डिलीवरी। The scope of business has increased due to e-commerce and the time and money of customer are saved। ई-कॉमर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? टाइम हमारा बचता है, हम टाइम को सेव कर सकते हैं, हमें कहीं आना जाना होता नहीं है और उसमें बहुत सारा डिस्काउंट भी हमें मिलता है बिकॉज ऑफ कंपटीशन, तो हमारी मनी भी सेव हो जाती है। ई कॉमर्स कुड बी फैसिलिटेट फ्रॉम द बिजनेस फर्म टू बिजनेस फर्म, फ्रॉम बिजनेस फर्म टू कस्टमर एंड कस्टमर टू कस्टमर। ये आपने बीए में पढ़ा होगा, B2C, B2B और C2C। देन नेक्स्ट, e-banking. When a customer is able to transfer funds from the website of a bank or financial
institution by using electronic device, then this device service is known as the e-banking. ई-बैंकिंग के बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अगर हमारे पास यूनो एसबीआई है या फिर कोई भी बैंक का ई बैंक नेट बैंकिंग फैसिलिटी है हमारे पास, तो हम इजीली फंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं. ई बैंकिंग कैन बी आइडेंटिफाइड एज अ इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग और वर्चुअल बैंकिंग. To avail the facility of online banking, the customer has to visit the site of bank and register on self. सबसे पहले हमें अपना रजिस्ट्रेशन वहाँ पे ही करवाना पड़ता है. उसके बाद हमारे पास आईडी, यूज़र आईडी और पासवर्ड मिलते हैं जिससे हम ई बैंकिंग की फैसिलिटी का यूज़ कर सकते हैं. एंड व्हेन ये सेम प्रोसीजर है वो अब फॉलो किस में भी होती है फॉर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन थ्रू अ मोबाइल फ़ोन, इट इज़ कॉल्ड मोबाइल बैंकिंग और एम बैंकिंग. अब जो ये ई बैंकिंग है वो हमारे फ़ोन में भी अवेलेबल हो गया है. नाउ सेकेंड, ईसीएस, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस. Facility of transferring money from one bank to another bank or to another institution through an electronic system is known as a ECS. This facility or service is available to account holder of the bank. इसके लिए आपके पास बैंक में अकाउंट होना नेसेसरी है. It is known as the electronic clearing services. ECS is यूजफुल फॉर रिसीविंग एज वेल एज पेइंग मनी. ईसीएस का यूज़ हम मनी रिसीव करने के लिए भी कर सकते हैं और किसी को पेमेंट करना है तो भी कर सकते हैं. Advantage of ECS to make a regular payment such as a salary, pension, interest, dividend, etc. Individual customer of the bank use ECS to pay bills such as a insurance premium, light bill, telephone bill, monthly installment, etc. that are their regular payment. ECS transactions are notified to customer through SMS to their registered mobile number. Now next, RTGS. The full form of RTGS is Real Time Gross Settlement. ये पूरा टॉपिक आपने बीए में बहुत ही डीपली पढ़ा होगा. The online service is available to the customer of a bank to transfer amount from one account to another almost instantly or within a very short time is known as a real time gross settlement. बहुत ही शॉर्ट पीरियड में हमें किसी को पेमेंट करना है तो हम आरटीजीएस के थ्रू कर सकते हैं. आरटीजीएस ट्रांजेक्शन आर नोटिफाइड टू कस्टमर थ्रू एसएमएस टू देयर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर. RTGS services are charged by concerned bank as per their rules. RTGS के लिए बैंक हमसे कुछ चार्ज भी लेती है. The following information is to be filled in online form for RTGS. RTGS के लिए हमें ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है जिसमें कौन सी डिटेल होती है. तो द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड, यानी जो अमाउंट हमें ट्रांसफ़र करनी है वो, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर्स बैंक इन विच अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड, द अकाउंट नंबर ऑफ एन अकाउंट होल्डर ऑफ द बैंक इन विच अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड, आईएफसी ऑफ द बैंक इन विच द अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर्ड. इतनी डिटेल हमें आरटीजीएस के लिए चाहिए होती है. Now, today we stop here. Thank you. Goodbye.